students, good morning. Today I am going to teach you the methods of asexual reproduction. So I have told you that there are 6 methods of asexual reproduction. The first one is the fission, second one is fragmentation, the third one is budding, fourth one is regeneration, fifth one is the vegetative propagation, and sixth one is the spore formation. So in the last video I have told you the fission, which is two types, the binary fission and multiple fission. Now I am going to tell you the fragmentation. Fragmentation is a types of asexual reproduction which takes place only in multicellular organism, whereas fission takes place in unicellular organism. ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. So fragmentation, some multicellular organisms with relatively simple body organization, यानी जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सिंपल है, वो तो है मल्टीसेलुलर बट सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है with relatively simple body organization, reproduce by fragmentation. Here the plant body, यानी जो पेरेंट बॉडी है, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, जब वो एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड फ्रैगमेंट्स. वो ब्रेक करता है, इसलिए फिशन में भी ब्रेक होता है, फ्रैगमेंटेशन में भी ब्रेक होता है, बट इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हेरेज फिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज द डिफरेंस. सिंपली after attaining the maturity, simply breaks up into smaller pieces called fragments. Each of these fragments, वो एक टुकड़ा कहलाएगा, fragments कहलाएगा. Each of these fragments has the ability to grow into a new individuals. प्रत्येक fragments जो है उसके पास एक ऐसा क्षमता है, एबिलिटी है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल को उत्पन्न करेगा. So has the ability to grow into a new individual. Several green filamentous algae, in case of Spirogyra, reproduce by the process of fragmentation. Simply उनका बॉडी जो है 4, 5, 10 जितना फ्रैगमेंट्स में, जितना टुकड़ा में टूट जाएगा, उतना नए इंडिविजुअल का वो 4, 5 टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नया इंडिविजुअल को उत्पन्न करेगा. इस तरीके से फ्रैगमेंटेशन होता है, which takes place in Spirogyra. Now the third method of asexual reproduction is regeneration. It is a type of asexual reproduction which takes place in multicellular organism. So many fully differentiated organisms like Hydra, Planaria and starfish have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. यानी ये body parts से नया organism का उत्पत्ति करवाता है. This phenomenon is known as regeneration. If a hydra or planaria or starfish is cut transversely into 2 or more parts, then each part develops the lost parts and becomes a new individual. यानी अगर हम लोग प्लानेरिया को, जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये प्लानेरिया है. ये प्लानेरिया को अगर हम लोग कट करते हैं 2 भाग में तो 2 प्लानेरिया बनेगा. अगर 3 भाग में कट करते हैं तो 3 प्लानेरिया बनेगा. तो ईच पार्ट विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म. व्हेन इट इज कट इनटू, ईच पार्ट डेवलप्स द लॉस्ट पार्ट को बना लेगा एंड बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल. रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. अगर हम लोग का बॉडी को काटा जाएगा तो नहीं होगा, 2 पार्ट 3 पार्ट से नया जीव का उत्पत्ति नहीं होगा, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रीजेनरेशन करने के लिए कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है विच प्रोलिफरेट, जो कि डेवलप करता है, विच प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और बहुत अधिक संख्या में सेल्स बनाता है, विच ग्रो टू मेक्स द टिश्यू एंड गिव राइज टू द न्यू बॉडी ऑर्गन एंड सिमिलरली द डेवलप्स टू न्यू इंडिविजुअल्स. So regeneration is a simple cut. If we cut 3 or 4 parts of the body of an organism into 3 or 4 parts, like planaria, like starfish, like hydra, each part will develop to a new individual organism, and the process is called regeneration.
Now, the fourth method of asexual reproduction is the budding. Budding is a type of asexual reproduction which takes place in multicellular organism like hydra and yeast. बडिंग जो होता है एक बड के जरिए डेवलप करता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है बडिंग. Some multicellular organisms produce small buds which gradually grow to take the form of an adult. उस बड से एक नया एडल्ट, एक नया इंडिविजुअल का निर्माण होता है. इन हाइड्रा के केस में a small outgrowth और ए बल्ज, एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है या बल्ज होता है बाहर की ओर निकलता है, कॉल्ड बड, जिसको हम लोग बड कहते हैं, appears in the lower half of the body due to repeated cell divisions. वो जनरली बॉडी के निचले हिस्से में एक स्मॉल आउटग्रोथ और बल्ज जो है अपीयर होता है इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन्स. बार बार सेल डिवाइड करके वहां से एक स्मॉल आउटग्रोथ या एक बल्ज बनाता है जिसको हम लोग बड कहते हैं. द बड दस फॉर्म, वो बड बन जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है. ग्रेजुअली ग्रोज इन साइज में, आकार में धीरे धीरे ग्रो करता है. एंड अल्टीमेटली गेट्स डिटैच्ड, एडल्ट जब हो जाता है, मैच्योर कर जाता है, अल्टीमेटली गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. वो फिर धीरे धीरे जब बड़ा होने के बाद ग्रो करके बड़ा हो जाता है तो वो उस पेरेंट बॉडी से, यानी जिसमें वो था उसके पार्ट से वो अलग हो जाता है, डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इवेंचुअली. एंड फिर वो इट डेवलप्स इनटू ए फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, और वो डेवलप करके एक स्वतंत्र रूप से उस बड के जरिए एक नया इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है और वो स्वतंत्र रूप से एक इंडिविजुअल हाइड्रा का निर्माण करता है, फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है. ईस्ट जो एक प्रकार का फंगस है, अ फंगस ईस्ट ऑल्सो सोज बडिंग, वो भी बडिंग का प्रक्रिया शो करता है. ईस्ट जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस में मदद करता है, एक फंगस में भी ईस्ट ऑफ फंगस ऑल्सो सोज बडिंग हियर. इसके केस में भी अ स्मॉल आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड द बड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल से एक बड डेवलप करता है विच ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. फिर वो ग्रो करता है, डिटैच होकर के एक नया इंडिविजुअल बनाता है और उससे एक नया ईस्ट का निर्माण होता है. So this is the budding which takes place in hydra. Budding takes place in yeast, is a type of asexual reproduction in which a bud is developed. Due to the development of the bud, the process is called budding, and which takes place in multicellular hydra and yeast. Thank you. Keep watching the video. Like and share and subscribe the video. We should proceed further in the next video, the vegetative propagation and the spore formation, the last two methods of the asexual reproduction. Thank you. Okay,